إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني صاحب و چاچی تمام قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے ہے مالک ارض و سما کے لیے ہے جو بگڑیاں بنانے والا ہے اولادیں دینے والا ہے بارشیں برسانے والا ہے چھاؤں دینے والا ہے دھوپ کی تپش سے انسان کو پناہ دینے والا ہے اور لا تعداد بے شمار بے حدوں کے حساب درود و سلام ہوں جناب صافی کوثر صاحب ماسٹر سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارکہ پر صاحب و ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے رکھ کے قرآن میں سے ایک مقام تلاوت کیا ہے اس مقام کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا کوشش کروں گا اپنی گفتگو کو مخصوص وقت میں آپ کی گوش گزار کر کے اپنی بات کو واضح کر دوں اللہ فرماتے ہیں وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ کوئی جائز نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نشانی لے آئے الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے اللہ اکبر یعنی خالق کائنات نے اختیارات سارے کے سارے اپنے پاس ہیں کوئی بھی اختیار مال کے ارض و سما نے اپنے نبی کو نہیں دیا اپنے ولی کو نہیں دیا کسی کو کچھ نہیں دیا اگر دیتا ہے تو مخصوص وقت کے لیے مخصوص حصے کے لیے دیتا ہے تو الگ مسئلہ ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں ایک بات جو گفتگو ہو رہی ہے معجزے کے حوالے سے کہ اللہ معجزے دکھاتا ہے اللہ معجزہ کرتا ہے معجزہ کہتے کس کو ہر وہ معاملہ غیر معمولی معاملہ جس پر انسانیت دنگ رہ جائے جس پر دنیا عاجز آ جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں اور معجزہ صرف اور صرف
अंबिया के हाथों से होता है। अंबिया की नबूवत को साबित करने के लिए अंबिया के साथ खास है। अगर वही गैर मामूली मामला, वो गैर मामूली काम जो वाक़ हो जाए किसी अंबी के और नबी के अलावा किसी भी मोमेंट से, उसको करामत बोलते हैं, करामत। अगर यही मामला उस फासिक और फाजर आदमी है, गुनाहगार आदमी है, उसके हाथों से ऐसा वाक़या गैर मामूली हो जाए, उसको इस्तदराज कहते हैं या सहर कहते हैं, यानी जादू करना कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो खालिक कायनात अपने कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से बताता है कि कुदरत कामिला अल्लाह रब्ब कायनात की है। माल के अर्ज़ समा के पास हैं सारे इख्तियारात। अल्लाह अकबर। मौजज़ा कहते हैं अमरुन खारिकुन लिआदतिन युजरिहुल्लाहु तआला अला यदि नबीजन, यानी अल्लाह किसी नबी के हाथ से खर्क आदत कोई मामला जारी करते उसको मौजज़ा कहते हैं। अंबिया से मौजज़े होते रहे हैं, अंबिया के अलावा दूसरे लोगों से भी मौजज़े होते हैं। जो मामलात खालिक कायनात ने मखसूस नहीं रखे, हाँ मखसूस थे नबियों की जात तक, मखसूस थे अंबिया के साथ मौजज़े थे, लेकिन अंबिया के जाने के बाद खालिक कायनात में कभी भी इसके इजहार से रुकावट नहीं। बहुत सारे ऐसे रब्ब कायनात के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, जिनके हाथों से खालिक कायनात दूसरों को फ़ायदा देता है, खर्क आदत मामला हो जाता है, गैर मामूली मामला हो जाता है और वो करामत बन जाता है और ये एक दीन की हक्कानियत के लिए हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हुआ तो बहुत से हुआ। अल्लाह अकबर। आपकी ज़िंदगियों में भी ऐसे वाक़यात हुए, आपकी ज़िंदगियों में भी ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन जिसके साथ होते हैं दो कंडीशनें बनती हैं, या तो वो बयान करना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा, या वो खामोश हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा बयान करना शुरू कर देता है उसके आगे फिर शक्लें बन जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बयान करने वाले की बातों के ऊपर अक्सरियत लोगों को कहते हैं छोड़ो ये जी केड़ी गल है, तो लग ही रहता। अल्लाह अकबर। लेकिन खालिक कायनात का कुरान कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत वाली ज़बान से रब्ब कायनात ने कलाम किया है। और कलाम कैसा किया है? रब्ब कायनात ने अंबिया के अलावा भी मौजज़े दिखाए। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ, इंशाअल्लाह बात समझेंगे। हज़रत ईसा आए ना, हज़रत मूसा आए, मूसा के वक्त में सबसे ज़्यादा लोगों का रुझान जो होता था वो जादू के ऊपर होता था। बहुत सारे जादूगर थे, बड़े बड़े परवरस करता था ये जो आना रब्बो को मुड़ाला का नारा लगाने वाला फ़िरौन जो था, उसने भी अपने दरबार में अपने दरबारी बड़े बड़े जादूगर भी रखे हुए थे। तफसीर वालों ने लिखा उसके मुसाहिब भी होते थे। तो रब्बे कायनात ने जब मूसा को भेजा था, जैसा वो जादू दिखाते थे, मूसा के हाथ से खालिक कायनात ने मौजज़ा दिखाया तो वैसे ही दिखाया, दुनिया को दंग करके रख दिया, सारा निज़ाम तलपट करके रख दिया। समझने वाले समझ गए थे। उठाइए सूरह क़सस पढ़िए, आपको वाक़या मिलेगा, समझ आएगी। जादूगर इकट्ठे हो गए, पूछने लगे तुम पहले करोगे कि हम दिखाएं अपने कर्तव्य? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ दिखाओ ना, तुम अपने कर्तव्य दिखाओ, अपने मुजाहरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतरने वाले कुरान के अंदर रब्बे कायनात ने बयान किया है। मूसा कहने लगा दिखाओ जरा अपने कर्तव्य। उन्होंने जब कर्तव्य दिखाए थे तो मूसा दिल में डर गए थे। खालिक कायनात ने ऊपर से आवाज़ दी थी, अल्लाह कहता था डरना किस बात का, या मूसा ला तखफ, मूसा डरना।
अल्लाह क्या करूं? खालिक कायनात ने कहा अल के माँ जमीन डाल जो तेरे हाथ में है। जादूगर समझ गए थे कि ये जादू हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जादू होता तो इसका जो सांप था, इसका जो अजदहा था, हमारे सांपों को साथ छोड़ता, खेलता, उछलता, कूदता, लेकिन ये सबको हड़प कर गया। ये एक निशानी है कि ये हकीकत पर मबनी बात है, हमारी तरह तखय्युल नहीं, हमारी तरह कर्तव्य नहीं है। चलिए आपको एक और मिसाल देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए ना, उस वक्त लोगों के अंदर रुझान जो ज़्यादा था वो सत्य का, हिकमत का, दानाई का। बड़े बड़े हकीम थे, बड़ी बड़ी मर्ज़ें जानने वाले थे, बड़े नवसरात थे। तो खालिक कायनात ने इनको जो मौजज़ा दिया था वैसे ही दिया था, वैसा ही मौजज़ा दिया था। कुरान कहता है कि जब जाते थे तो ईसा अलैहिस्सलाम खबरें बता देते, वमा ततख़्ख़रून, जो तुम जखीरा करके आए हो वो बताते थे, क्या खा के आए हो बताते थे। दुनिया की जो अकल सी हैरान रह गई थी कि ऐसा तभी भी हो सकता है दुनिया के अंदर। कोई तबीब माजरजात पैदाइशी अंधे को दुरुस्त कोई नहीं कर सकता था। ये खालिक कायनात के हुक्म से हाथ फेरते थे, बीनाई लौट आती थी, आंखों की रोशनी वापस आ जाती थी। कोड़ के मर्ज को कोई दुरुस्त नहीं कर सकता। आज तक साइंस इस बात पे आजिज है कि एक कोड़ के मर्ज को दुरुस्त कर दे, बहुत मुश्किल है। लेकिन रब कायनात ने जो मौजज़ा ईसा को दिया था, ईसा को बता देख तेरे ज़माने के लोग तबीब हैं, हकीम हैं, दनाई में बड़े माहर हैं, मैंने तुझको मौजज़ा भी दनाई वाला दिया है, तेब वाला दिया है। हाथ फेरते थे खालिक के हुक्म के साथ, ये कोड़ वाला मर्ज जो होता था सारा ख़त्म हो जाता था, निज़ाम मुक्त होता था, ख़त्म हो जाता था। ये अंबिया के हाथों से अल्लाह खालिक कायनात मौजज़े दिखाता था। उनकी नबूवत को साबित करने के लिए रब कायनात की तरफ से रसूल होने के लिए साबित करना होता है, खालिक कायनात देता था। चलिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वक्त आया, जी और ही तरह के लोग, उनका मजाज ही अलग था। बद्दू थे, उखड़ दमाग थे, जवान के बड़े दरस्त थे। जब बोलते थे पंजाबी की कहते ने उखड़ी कुहाड़ी तरह पैंदा, बंदा बड़ा यार कौड़ा, उखड़ी कुहाड़ी तरह पैंदा। अल्लाह तो खालिक कायनात ने मोहम्मद रसूल करीम के जवामी अल कालम दिए थे, बात मुख्तसर कहते थे, माना बड़ा अजीम होता था, लहजा बड़ा नरम होता था, दिल की गहराइयों तक असर करता था। कैसरो किसरा वाले अपनी फौजें नहीं भेजते थे, कहते थे इस इलाके में फंज रुपया पान इलाका है, सब्जा होता नहीं है, पानी जहाँ नहीं है, इस जमीन के ऊपर हमने कब्जा करके लेना क्या है। जब बद्दू किस्म के लोग आज सुबह हम इनको गालिब कर भी लें, इनके ऊपर गलबा पा भी लें, ये मगलूब हो भी जाए, शाम को फिर ये तलवारें नेज़े उठा के हमारे सामने आ जाते, हमको मिलेगा क्या जहाँ से। कैसर कहता छोड़ो इस इलाके को, किसरा को दे दो। किसरा कहता मैंने इसका अचार डालना पड़ा रहा। कोई नज़म नहीं था, कोई तरतीब नहीं थी, कोई जमाबंदी नहीं थी। लेकिन जब मोहम्मद रसूल करीम आए थे, खालिक कायनात ने मोहम्मद रसूल करीम की जवान के ऊपर शरीनी ऐसी रखी थी, मिठास ऐसी रखी थी, बात कहते थे, लहजा कहते थे, अगले के दिल के ऊपर जाके असर लगता था। अल्लाह अकबर। किसी कहने वालों ने यही तो कहा था ना, दिल उनका भी सीना जो सर लेने आए। अल्लाह अकबर। मोहम्मद रसूल करीम के जितने भी कातिल थे हजूर के गिरविदा बन के, हजूर के दीवाने बन कर गए थे। जमाबंदी की बात है तो हजूर ने इनको सिखलाया था जमा कैसे हुआ।
हजूर ने बतलाया था इकट्ठे कैसे होना है, साफ बंदी कैसे करनी है, मैदान जहाज में ले जाकर तरबियत करके लोगों को दिखाया था। वही कैसर किसरा वाले जो कहते थे इनके पास तरतीब नहीं है, लड़ने के माहर तो है, जमाबंदी नहीं है, लश्कर की शक्ल में चल नहीं सकते थे, वही कैसर भी टुकड़े टुकड़े हुआ, वही किसरा भी पारा पारा हुआ। कौन थे? मेरे नबी के जानसार थे, मेरे नबी के तरबियत याफ्ता। नबी के मौजूद होते हैं, इससे बड़े मौजूद भी खाल के कायनात में बड़े दिखाए हैं अंबिया के लिए, नबी करीम के लिए भी बड़े मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। सूरा कमर उठाइए, इंशक्कतुल कमर पढ़ के देखिए। मक्के वालों ने कहा अच्छा नबी है, दावा करता है, ये चांद के टुकड़े करके दिखा ना जरा। दराई उनके पास थी, समझ उनके पास भी थी, साइंस उनके पास भी थी, वो जानते थे जहाँ तक कोई जा नहीं सकता था, टुकड़े करना तो दूर की बात, वहाँ तक पहुँचेगा कैसे। मालिक ने कहा था मेरे हबीब परेशानी की, मैं हूँ ना कुदरत वाला, मैं हूँ ना कामिल, भेजा मैंने है ना तुझे, मांगते जे हाँ दिखाता मैं हूँ। खालिक ने टुकड़े करके दिखा दिया। बुखारी के अंदर बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आका के जमानों में चांद टुकड़े हुए। अल्लाह को दूसरे अहमद के अंदर वाक़या इमाम अलबानी अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला सहीहत के अंदर इसको नकल किया कि नबी के सामने आए, कहने लगे अच्छा मान लेते हैं तू नबी है, लेकिन एक मसला हमारा है, हमारी फितरत में नई नई बात सीखनी आती है, जरा मेहरबानी कीजिए ना, ये दरख्त खड़ा है जरा इसको कुछ करके दिखाइए। तो मेरे नबी ने दरख्त को हुक्म दिया था, दरख्त चलकर हजूर के पास आया। ये तो मौजज़ा, दुनिया की अकल हैरान थी, दुनिया की साइंस ख़त्म थी, खालिक़े कायनात के बनाए हुए कानून के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं था। फिर खालिक कहता तुम समझो क्या, तुम जानो क्या, जिसको मैंने रसूल बनाया, जिसको नबूवत मैंने अता किया, उसको दिया क्या है, तुम क्या समझ सकते हो। सही बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है। अल्लाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान फरमाते हैं, पानी ख़त्म हो गया, सहाबा परेशान है, क्या बनेगा। अल्लाह को सीरत की किताबों के अंदर रहीकुल मखतूम में मौजूद है, सीरत इब्न हिसाम में मौजूद है, सीरत इब्न इसहाक में मौजूद है वाक़या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी थोड़ा सा मंगवाया, वो बर्तन था पानी वाला, लोटा मस्कीजा छोटा, हुजूर ने अपना हाथ डाला और पानी उबलने लगा। चाबी बयान फरमाते हैं गोया कि हजूर की उंगलियों से चश्मे जारी है। पूरा लश्कर ने इस्तेमाल किया। सीरत की किताब रहीकुल मखतूम में वाक़या मौजूद है, हजूर गजरे पर जा रहे थे, पानी ख़त्म हो गया सहाबा के पास। हजूर ने पूछा पानी लाओ, हजूर कोई भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। हजूर ने फरमाया देखो कहीं से, देखा एक औरत जा रही है, ऊँट के ऊपर 2 मस्कीजे लदे हुए हैं, पानी से भरे हुए जा रही है, सहाबा ने उसको रोक लिया। उसने दुहाई दी कि अल्लाह के बंदे मेरे साथ जुल्म क्यों करते हो, बड़ी दूर से पानी लाई हो। सहाबा ने पूछा कहाँ से लाई हो। उसने कहा कल इसी वक्त में जहाँ से गई थी, आज इस वक्त जहाँ पहुँची, इतनी दूर है पानी। सहाबा उसको पकड़ के ले आए, वो परेशान थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मस्कीजे से पानी लिया, वुज़ू किया, उसके अंदर अपना हाथ डाला, पानी बहने लगा। हजूर ने फरमाया इस्तेमाल करो। सहाबा कहते हैं हमने अपने सारे जानवरों को पानी पिलाया और लश्कर के अंदर जितने बर्तन थे सारे भर लिए। भरने के बाद हजूर जब अपना हाथ उठाया तो पानी वैसे का वैसा, मस्कीजा वैसे का वैसा। हजूर ने कहा बीबी देख ला तेरा पानी ऐसी
मुझे बताइए वो मस्जिदे के अंदर कौन सी जड़ें थी, वो मस्जिदे के अंदर कौन सी मशीनरी थी, कौन सा पंप लगा था जो पानी पूरे लश्कर को पिला रहा है, जिसके जानवर पी रहे हैं, जिसके बर्तन भरे जा रहे हैं। खालिक कहता तुम क्या जानो, नबी जिसको मैं बनाता हूँ, रसूल जिसको मैं बनाता हूँ, देता क्या हूँ। खालिक नबी के हाथों से मौजूद दिखा के दुनिया की अकल को हैरान कर देता है। कहता देख अल्लाह अकबर, मालिक अर्ज़ समा अपने इशारे बताता है। खालिक कहता सिर्फ नबी की जात तक न रहना, ये मत समझना मैं मालिक हूँ, खालिक हूँ एक नबी का, ये मत समझना कि नबी की तकवत है, ये मत समझना। अल्लाह कहता हाँ मोहब्बत तुम लगाओ, लाओ तुम लगाओ, मेरे वली तुम बनो, दोस्त तुम बनो, दावा तुम करो, हकीकत का रूप मैं दिखाता हूँ। अल्लाह कहता चल मंजर तुझे दिखाता हूँ। दुनिया की अकलें ख़त्म हो जाती हैं जहाँ रब्बे कायनात अपनी कुदरत कामला का इजहार करता है। अल्लाह अकबर। कैसे नबी के अलावा भी अल्लाह किसी के हाथ के ऊपर एक मौजज़ा दिखाता, मंजिल आपके सामने रखता। अल्लाह अकबर। कुरान के अंदर एक मंदिर है, आप जकरिया अलैहिस्सलाम को जानते हैं जी? जानते हैं। उन्होंने एक बच्ची ली थी जिसकी परवरिश कर रहे थे, उस बच्ची को भी जानते हैं, क्या नाम था भला उसका? मरियम अलैहिस्सलाम। अल्लाह कुरान में कहता है कुल्लमा दखला अलैहा जकरिया मेहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा। अल्लाह कहता है, तफसीर वालों ने लिखा फल वहाँ मरियम के पास पड़ा होता था। कौन सा? बेमौसमा, जिसका मौसम नहीं होता था, जिस फल के मिलने की उम्मीद भी नहीं होती थी, वो फल मरियम के पास। मरियम नबी नहीं है, मरियम अलैहिस्सलाम नबिया नहीं है। अल्लाह अकबर। जकरिया नबी है, 40 साल की उम्र में नबूवत मिलती है मेरे भाइयों। कितने साल की? 40 साल से लेकर बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है 80 साल की उम्र में, बाद ने लिखा है 86 साल की उम्र में अल्लाह जकरिया को बेटा देता। अल्लाह कहता इन्ना नुबश्शिरुका का बे गुलामिन हलीम, हम तुमको गुलाम हलीम बच्चे को खुशखबरी देते हैं। साथ अल्लाह कहता हमने इसका नाम भी रखा है क्या? याहिया। अल्लाह कहता इससे पहले जो नाम भी दुनिया में। अब मुझे बताइए वो नबी उससे पहले भी खालिक की तरबियत करता है जिसको नबी बनाता है। पाक बाज इंसान क्या मांगता नहीं था? नबूवत के बाद से उसने मांगा नहीं है क्या? उसको औलाद की तलब नहीं थी? औलाद की तलब थी तो मांग रहा है अल्लाह बूढ़ा हो चुका हूँ अब तो कुछ कर। अल्लाहुम्मा या रसूली, अल्लाह मुझको वारिस अता कर जो मेरा वारिस बनेगा और आले यकूब का भी वारिस बने। कितना अरसा लगा? 40 से 40 80 40 साल मुसलसल खालिक के सामने रोए हैं, गिड़गड़ाए हैं कि अल्लाह दे नहीं सकता था, अल्लाह के पास ताकत नहीं थी, क्या उसका महबूब नहीं था? लेकिन अल्लाह कहता है ऐसे नहीं, मौजज़ा दिखाता हूँ मैं, लेकिन कब दिखाता हूँ, कहाँ दिखाता हूँ, किस अंदाज में दिखाता हूँ। खालिक कहता है ये मेरी मर्ज़ी, तेरा काम मांगना है, तू मांगता रहे, देना काम मेरा है, मैं अता करता हूँ कब और कहाँ देना चाहता हूँ। मैं एक मिसाल देता हूँ, बात समझेंगे। एक बाप के पास ताकत है, कुव्वत है, माल है। बेटा कहता अब्बा जी मोटरसाइकिल लेकर दे। बाप कहता कि अगर सोचता कि इसको अब अगर मोटरसाइकिल ले दी, बच्चा है नया नया चलाने लगा तो कहें ये ठोक देगा। कहता ऐसे नहीं, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, मिडल के इम्तिहान बोर्ड के दे, कामयाबी ले, मैं तुझे मोटरसाइकिल ले देता। अब मुझे बताइए बाप तो वही है ना, बदला तो नहीं है। मिडल तक जाते हो 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, हो सकता है बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा हो, 3 साल का वक्फा लगाता है, 3 साल में बच्चा भी तो वही है ना।
बाप भी वही है, माल भी उसके पास मौजूद है, बच्चे को उस वक्त भी मोटरसाइकिल लेके दे सकता था, लेकिन नहीं कब दिया, मिडिल करने के बाद, क्योंकि बाप को पता था अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस वक्त है। चमल जाएगा, शहीद जलाएगा। मेरे भाइयों, क्या खालक दनाई वाला नहीं है? वो अलीमुल खबीर है, समीउल अलीम है, हकीम है, अहकमुल हाकिमीन है। वो जानता है मैंने देना कब है, इसको ज़रूरत कब है। खालिक ने 80-86 साल की उम्र में जाकर बेटे से नवाजा था। चलो एक और मिसाल जाते जाते देता हूँ। इब्राहीम को जब नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, जब अल्लाह पहला बेटा देता 90 साल की उम्र में, 50 साल वो भी रब से। और हम क्या करते हैं? हाँ जी, मेरे वर्गा काला बंदा 2000 रुपये दुआ की तनख्वाह, यार रब साड़ी तो सुनता नहीं, और फलाने को चलीए, तो फलाना नहीं भावें मेरे नालों भी ज़्यादा देर नाल सुनता हो। सही हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने उस बंदे पर बड़ा ताज्जुब करता है कि जो बंदा दुआ करने में जल्दी करता है। फिर आनगी होती है, सहाबा ने पूछा जल्दी क्या करता है? कहता है वो अल्लाह से मांगता है, लेकिन जब अल्लाह देने पे आता है वो मांगना छोड़ देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह मौजूद दिखाता है, आपकी ज़िंदगी में भी दिखाता है, लेकिन कैसे, किस अंदाज में, कौन सा मौजूदा आपकी ज़िंदगी में बरपे हुए हैं आप जानते हैं, सिर्फ आपने समझा नहीं है उसको। चलिए मैं आपको एक गैर और गैर नबी के मौजूदा, जिन्हें आज करने वाली बात जिसको अल्लाह साबित करता है। अल्लाह अकबर। आपने सुना ये सूरज सबा है, उसके अंदर एक वाक़या तो जानवर का, सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और क्या जानवर था जी? खुद 10 जय करो ना यार, मैं भूल भी जाना से हो गया। वो खुद का मामला था, खतो खताबत हुई थी, और नबी ने कहा था उसका वो तख्त है वो लाने वाला कौन? काला इफरीतुन, एक जिन इफरीत था, उसने कहा मान ले आता हूँ। कब? आपकी मजलिस ख़त्म करने से पहले सुलेमान कहने लगे ज़रूरत नहीं है, एडा तेज़ रफ्तार तू रहा है। मैं अपनी पंजाबी जी तर्जमा कर रहा था कि तो कुरान ना समझ लिया जी, मतलब ये था कि अभी ज़रूरत तू रहने दे। एक और बंदा था, उसने कहा जी मैं आपकी आँख झपकने से पहले तख्त ला देता हूँ। कुरान कहता उसके पास इसमें आज़म था, वो नबी नहीं था। कितने 100 मील है या कितने 1000 मील है, वो तख्त पड़ा हुआ, आँख झपकने से पहले उसी का तख्त ला के उसी के सामने रखा। चलिए आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह अकबर। ये हम जिम्मेवार सूरज पढ़ते हैं, कौन सी सूरज जी? सूरह कहफ। उसके अंदर असहाबे कहफ का वाक़या है, आप जानते हैं ना। अल्लाह कुरान में 9 नंबर आयत से लेकर 26 नंबर आयत तक सूरत कहफ से वो वाक़या मुकम्मल है। मैं मुख्तसर आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। वो बादशाह से पाके कि जो हमको शिरक में मुब्तला करता है, खालिक कायनात की रबूबियत को मान लिया था, अलूहियत को मान लिया था, खालिक कायनात की कुदरत कामला को मान लिया था। कहते थे मालिक वही, खालिक वही, मुसव्वर वही, बारी वही, अकबर वही। उसके भागे कहे हम फितनों में मुब्तला ना हो जाए, गार में जाके सो गए। अल्लाह कहता उनकी करामत ये थी, अल्लाह ने उनको सुलाया। कहाँ था? गार के अंदर। कितना अर्सा? 1 साल, 2 साल जी, 309 साल। मेरे भाइयों, अल्लाह ने दिखाता है। चलिए आपको एक और मिसाल देता हूँ। अल्लाह रब्बे कायनात मौजूद, टाइम का भी मैंने कोई पता नहीं लग रहा कि 9 हो गया। मोबाइल नहीं है, कितने मिनट हो गए जी? 21 मिनट। चलो अल्लाह 3-4 मिनट है। अल्लाह अकबर। सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी सफ़र पे जा रहे थे, बारिश
बादो 12 बड़ा तूफान आया। उन्होंने एक गार में पनाह ले ली, 3 आदमी थे और ऊपर से एक चट्टान गिरी, घार के मुंह के ऊपर बांध कर दिया। चट्टान इतनी बड़ी थी, इन तीनों से हटाई नहीं जाती थी। अब परेशान है, मोबाइल का दौर नहीं था, PTCL नहीं थी, वायरलेस नहीं था, कबूतर उन्होंने कोल नहीं सी भी जरा खत भेज के कह देंगे सानू कढ़ लो। ये कबूतर का होंदा तो बाहर रोशनी निकलती, फिर पुत आवाज़ भी मार सकते सन। दुनिया का कोई राबता नहीं, कोई सैटेलाइट सिस्टम नहीं है। क्या कहते हैं तीनों के अपने अपनी नेकी का वास्ता रब कायनात के सामने रखो, शायद कि अल्लाह हमारी मुश्किल को आसान कर दे। उन्होंने अपनी अपनी एक नेकी रब के सामने, एक ने पहले अपनी नेकी का वास्ता दिया, वसीला दिया, अल्लाह तू जानता है तेरे लिए किया तो हमें मुश्किल से नजात दे दे। पत्थर छिड़का, रोशनी आई, हवा आई, लेकिन बंदा पार नहीं से हो सकता। और ये वो सैटेलाइट सिस्टम है, सबसे पहला सैटेलाइट सिस्टम है जिसको खालिक कायनात ने इंसान के अंदर, इंसान के दिमाग में रखा है। इसकी जबान से लहराई लहरें निकलती हैं जो खालिक के सामने जाती हैं, मालिक को चप करके इसका जवाब देता है। दूसरे ने अपनी नेकी दी, पत्थर और छिड़का, तीसरे ने नेकी दी, पत्थर सारा ही छिड़क दिया। अल्लाह कहता देख, नबी के मौजूद देखता है, अंबिया के बगैर भी देता हूँ, तेरी जिंदगी में देता हूँ। अल्लाह अकबर। मुझे हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, शायद आप जानते हो, पर अल्लामा एहसान लाई जहीर रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक वाक़या वो बयान करते हैं, मेरे गुर्दे में पत्थरी हो गई, बड़ा तकलीफ़ थी, बड़ा दर्द हुआ। कहने लगे मैं बैतुल्लाह में था, अल्लाह के काबे का गुलाब पकड़ कर मैंने दुआ की, अल्लाह तेरे घर के अलावा कोई घर है, तुझसे बड़ा कोई डॉक्टर है, तकलीफ़ मुझे दे है। कहते हैं मैंने आबे जम पिया, मुझको शिद्दत से पेशाब की हाजत थी, मैं गया तो पत्थरी बाहर। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, खालिक ये बताता है कि तुम्हारा काम मांगना है, तुम्हारा काम यकीन करना है, ईमान लाना है। ईमान का मतलब क्या होता है? हम ईमान लाते हैं लेकिन जिस तरह हक है वैसा नहीं है। जिस तरह हक है ना, ईमान लाने का वैसा नहीं लाते। अगर वैसा ला रहे होते, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मिंबर रसूल पर खड़ा पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लाह खालिक कायनात तेरी जिंदगी का हर साल में एक नया मौजूदा देगा। आज भी तेरा पूरा वजूद, तेरी सारी जिंदगी, तेरी माइशत, तेरा अखलाक, ये सारा रब की तरफ से वसीयत किया हुआ मौजूदा है। छोटी सी मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। एक बंदा गया अपने शेख के पास, शेख मेरी मसला हल कर दें, मुझे इसमें आजम सिखा दे। तो कहा तेरे पास इसमें आजमा जानता है तू? कहता मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं मालूम मेरे पास। क्या तेरे पास है? चला जा। कहता नहीं, सर्दियों के दिन थे, उस्ताद ने शेख ने इशारा किया, उठाओ चक्को। पानी का टोपा सी, पुराना जमाना सी, मदरसे टोपे बनाए होते सी पानी वाले, ठंडा पानी सी, तो चुक के उन्होंने थले मारिया पानी और ठर गया। उन्हें जो हाथ पैर मार के निकलन लग्या तो शेख ने इशारा किया, मुंडिया फुंडिया ने छुट्टी मारी, फिर तक मारे और दो इधरों निकले, इधरों करद जो 3-4 बारी लाचार हो गया ना, उन्होंने समझ आ गई ये मैं अज मारन की मारन। अल्लाह अकबर। आखिरी बारी फिर उन्हें कहा, सोने रब्बा तू ही बचा ला। शेख ने कहा उठा के निकाल लो इसको, बता जो आखिरी बार पूरे दिल के साथ गहराइयों से तूने उसको पुकारा था, यही तो इसमें आज पुकारना तो इस तरह पुकार, तेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा खालिक कायनात करेगा। मेरे भाइयों, तो आज से आज ही ना आ जाए। मैंने 2 मिसालें दी अंबिया की, 40-40 साल तक दुआएं करते रहे। इमाम बुखारी की वालदा 2 साल तक मुसलसल अपने बेटे की बिनाई की दुआ करती रही है, अल्लाह ने तब जाकर दिया है।
اب اس سے بڑا ڈاکٹر بھی کوئی نہیں ہے، حکیم بھی کوئی نہیں ہے، قدرت کاملہ ساری کی ساری اسی کے پاس ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اسی کے پاس ہے۔ جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے وہ قدرت کاملہ کا اظہار کر دیتا ہے۔ صرف ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ دے گا تو وہ ہی دے گا، دیر تو ہو سکتی ہے، ہاں جی دوسرا لفظ کی بولنا ہے، دیر ہوئے گی اندھیر ہے۔ اللہ سمجھنے کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا